भाई नितिन कहाँ हो? कहाँ है नितिन? यस मैम। यस मैम। अच्छा, रुद्र के नाम से आपने ज्वाइन किया है क्या? नो मैम, मेरा मोबाइल चल नहीं, नेट नहीं चल रहा है मेरे मोबाइल में, दूसरे मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा नितिन, आज ऐसा करते हैं कि आज आप कल इसको प्रेजेंट करिएगा, है ना? आज क्या है, आज डीन यस सर मैम। आप लोगों की मीटिंग लेंगे एट 11 to 11:15, मतलब 11:15 शायद स्टार्ट होगी, रिगार्डिंग यस एग्जामिनेशन मैम। पैटर्न एंड ऑल। तो मैं आप लोग को ईयर पढ़ा रही हूँ, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। कल आप उसमें मतलब आप अपनी तरफ से कल प्रेजेंट करिएगा। बना लिया था ओके नितिन? मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप कल प्रेजेंट करिए, क्योंकि कल टाइम मिल जाएगा। आज क्या है, टाइम नहीं मिल पाएगा तो वो सही नहीं रहेगा। 20-25 मिनट मिलेंगे, उतने में हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो टुडे आई विल स्टार्ट, फिर आप उसी को दोबारा एक्सप्लेन करना। ठीक है, ओके मैम। ओके। So now we start with the sense organs. Sense organs, in because we are considering regional aspect. So because head is almost going to complete it, so eye and ear was left. Now ear will be discussed in today class, and later on eye, and then after nasal cavity, so that the whole head will be completed. So ear, you all know, I think it is very well explained in your 12th and NEET classes, because it was in that time it is detailed study, because physiology part was also discussed in that. Now we will be considering here only anatomical part, right? So ear is statoacoustic organ. Stato means balance, means it is responsible for balancing, and acoustic means hearing, means responsible for hearing as well as balancing. Now ear, as you are seeing here in the diagram, here the pinna is different, means ear is comprised of three parts: external ear, middle ear, and internal ear. You see the external ear, here the pinna is different than the human being. The here the pinna can be movable, right? It is movable and very elastic structure, which is opposite to human being. Human being cannot move their pinna, but in case of animal, it is moved by the animal by voluntary actions, right? So one by one we will discuss. First we will discuss about the external ear. अच्छा, अब ये तो बात हुई ईयर का. अगर if we see about in which bone in the skull the whole ear is situated, then we see it is the temporal bone where the whole entire ear is present. ठीक है ना? तो हमने पेट्रस टेम्पोरल पढ़ा था, याद करो. टेम्पोरल बोन पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? स्क्वैमस टेम्पोरल एंड पेट्रस टेम्पोरल पढ़ा था. ठीक है, तो इसमें जो पेट्रस टेम्पोरल था वो अगेन इट वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: tympanic part and petrous part of petrous temporal. Tympanic part of petrous temporal and petrous part of petrous temporal, अगर याद आ रहा हो, और या फिर आप दोबारा थोड़ा देखिएगा. शायद टेम्पोरल ज्यादा कवर नहीं कर पाए थे, बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बोन ऑल्सो. जैसे ईयर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे बोन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए उस समय पढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि आप लोग देख नहीं पा रहे थे चीजें. बस लेकिन इतना याद रखें, मेजोरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ ईयर इज सिचुएटेड इन द temporal bone, right? And in temporal bone, majority part is present in petrous temporal bone, right? So कुछ टर्म तो हमने तब भी पढ़े थे, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस, याद आ रहा हो, थोड़ा बहुत पढ़ा था उस समय. चलिए कोई बात नहीं, वन बाय वन अभी हम ईयर डिस्कस करेंगे. एक्सटर्नल ईयर
is comprised of ear pinna and external auditory meatus. External auditory meatus का मतलब क्या है? External ear canal and ear pinna. ठीक है? And then tympanic membrane, that is the partitioning membrane between the middle ear and external ear. ठीक है? So basically, external ear is comprising of two parts, that is pinna and external auditory canal or external auditory meatus. So see here that this is external ear. The external ear is rough funnel shaped structure. It is comprised of two surfaces. Two surfaces what? देखो one surface कौन सी होगी जो मतलब हम इसको medial surface भी बोल सकते हैं या internal surface भी बोल सकते हैं, ठीक है? और the another surface will be the external surface. या हम इसको anterior भी बोल सकते हैं because ear are movable. तो depending on position, usually we can say anterior and posterior surface. So this one is anterior surface जो आगे की तरफ होगी एनिमल के, and this surface is concave, raised and possess openings or opening of external ear. मतलब यहीं पर इसी surface में here will be the opening of external ear, right? So this is the anterior surface which is concave. Now behind to this surface will be the posterior surface which is convex and covered by hairy skin, right? Now regarding the borders, there are two borders, upper and lower border. Upper border किसको बोलेंगे? Which is facing towards horn, that will be the upper border, and lower border which is facing downward. So upper and lower border are thick and apex is blunt. Here you see the base of the ear pinna. This will be considered as base, which is broad and attached to external auditory process of petrous temporal bone. ठीक है? अब one by one we will see the individual parts. So first we will discuss the pinna of ear, that is also called auricle, right? So this pinna is comprised of three cartilages: cutiform cartilage and annular cartilage. Three cartilages are there. So majority of the portion of this pinna is formed by the conchal cartilage. ठीक है ना? It is large and giving shape to the. मैम स्लाइड शो नहीं हो रही. क्या स्लाइड नहीं दिख रहा? मैम फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है अभी. फर्स्ट ही स्लाइड चल रही है? यस मैम. और कर्सर भी शो नहीं हो रहा है. अच्छा ओके, एक मिनट. मैम सरफेस और बॉर्डर एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ, वो आप लोगों को डायग्राम नहीं दिख पाया. ओके, मुझे आपने पहले बताना था. अब तो चेंज हो रहा है स्लाइड? यस मैम. अब चेंज हो रहा है ना? यस मैम. ठीक है, चलो दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं. देखो, दिस इज व्हाट? दिस इज ईयर पिन्ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑरिकल and one component of external ear, right? So the ear pinna is comprised of two surfaces. One surface is anterior surface, ठीक है ना? Anterior surface will be facing towards anterior of the animal and behind to this is the posterior surface. तो अगर आप लाइव एनिमल में भी देखेंगे तो ये सरफेस कैसी होगा? कॉन्केव और स्मूथ होती है, ये वाली सरफेस चिकनी रहती है, ठीक है ना? सो एंटीरियर सरफेस इज कॉन्केव एंड रिज्ड. रिज्ड मतलब एक तो वीनस काफी वेन्स के भी यहाँ पर वो देखते हैं, एक तो वेरी प्रोमिनेंट वेन्स आर प्रेजेंट ओवर हियर एज वेल एज देयर आर रिजिंग आल्सो. रिज्ड मतलब बीच बीच में जो जैसे हम बोन्स में रिज पढ़ते थे वैसे ही यहाँ कार्टिलेज में रिज है, ठीक है ना? So it is concave, raised and possess opening of external ear. Here will be presence of external opening of external ear, right? Then posterior surface which is convex and covered by hairy skin. So that will be behind. Then the upper border, this one will be known as देखो upper border lower border में confuse नहीं होना है because position of ear is like this. So facing upward, ठीक है ना? अब ईयर रोटेट तो होगा नहीं, ईयर क्या केवल क्या होगा? मूव होगा. ओनली इट विल बी फ्लैपिंग. द फ्लैपिंग विल बी प्रेजेंट बट इट कैन नॉट बी रोटेटेड. सो द अपर बॉर्डर रिमेन द अपर एंड लोअर विल रिमेन द लोअर, राइट? सो अपर बॉर्डर इज फेसिंग टुवर्ड्स अपवर्ड एंड लोअर बॉर्डर इज फेसिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड.
and the apex is blunt, right? The base is broad and attached to external auditory process of petrous temporal bone. Actually अब थोड़ा पढ़ाया तो था, मुझे याद है मैंने टेम्पोरल थोड़ा पढ़ाया था कि नहीं, याद तो मुझे आ रहा है। स्क्वैमस टेम्पोरल तो पहुंच गए थे हमने जब जाइगोमेटिक प्रोसेस और स्क्वैमस टेम्पोरल पढ़ा था, याद करो। हाँ पढ़ा था, याद आ रहा है मुझे, उसमें ग्लिनोइड कैविटी भी पढ़ी थी। याद क्यों बच्चों, याद आ रहा है कुछ? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सामने से। टेम्पोरल में हाँ डिवीजन नहीं तो इतना याद नहीं आया क्लियर कट, रिवीजन नहीं पर मैं भी हुआ था। नहीं टेम्पोरल पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है, अच्छे से याद आ रहा है, क्योंकि मैंने एकदम मेरे को इसलिए याद आ रहा है। हुआ है मैंने हाँ टेम्पोरोमैंडिबुलर आर्टिकुलेशन भी दिखाया था, फिर याद करो ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड फोराम, पोस्ट ग्लिनोइड फोरामेन, याद थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, कंडाइल, जाइगोमेटिक प्रोसेस के पार्ट। यस मैम। हाँ फिर उसमें फिर पेट्रस टेम्पोरल में आ गए थे हम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब कितना हम चाहते तो हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाए, लेकिन अब वही ये चीजें बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, दिखा किया करिए। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तनुवास वाला है वो कौन अप्रोच करते हो आप लोग? तनुवास इवेंट लेक्चर है ना तनुवास के? मैम देखा नहीं। नहीं देखा? उसमें देखना, उसमें उनके थोड़े कुछ वीडियोस वगैरह भी हैं उसमें। हमारे पास तो वो पूरा कॉम्पैक्ट वही है, इवेट करके वो पूरा ही है। मतलब पहले क्या है, कोर्सेज ऐसे चलते थे, रीजनल नहीं था पहले कोर्स। जब एमएसबी 2016 में रिवाइज हुआ है पूरा कोर्स वेटनरी का, उसके पहले जो कोर्स था वो पूरा एनाटॉमी ना, VN 111, VN 121, VN 211 एंड VN 221, इस टाइप से डिवाइड था कोर्स। तो इस टाइप से वो जो कोर्सेज इस टाइप से बनाए हुए हैं, स्प्लैंक्नोलॉजी एंड अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है ना, 1 to 1। फिर 111 है, उसमें ऑस्टियोलॉजी, ऑर्थोलॉजी एंड ये शायद एंजियोलॉजी, मायोलॉजी है उसमें। ऐसे करके मतलब वो कोर्सेस हैं उसमें तनुवास में। अब वो फाइल भी बहुत बड़ी है तो मैं आप लोगों से सेंड भी नहीं कर पाऊंगी, अदरवाइज हमारे पास तो पूरे कोर्सेस हैं। हाँ ये जरूर है कि हाँ इंडिविजुअल टॉपिक, हाँ अगर कोई आप लोगों में से जो थोड़ा सा बच्चा हो जो मतलब इसमें कंप्यूटर में थोड़ा ज्यादा नॉलेज रहता ना, थोड़ा सा ये ड्राइव में पहले सेव कर लो या ऐसे करके कुछ ऐसे ट्राई करके देखना। तनुवास की वेबसाइट में जाके और कोर्स ऐसे डाल सकते हो आप लोग, VAN 111, VAN 111, VAN 121 ऐसे करके आप डालिएगा, टाइप करिएगा, तो उसमें वो पूरा का पूरा वो उतना जो VAN 111 का पूरा कोर्स आ जाएगा। तो जैसे सपोज आप ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये किस में आएगा, एस्थेसियोलॉजी में आएगा, आई ईयर। कंपैरेटिवली उसमें मैटर ठीक है, कुछ उन्होंने क्या है एनिमेशन के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। कुछ जो है लेक्चर्स ऑडियो लेक्चर भी हैं और रिटन भी है, दोनों हैं। तो वो भी एक कोशिश आप कर सकते हो, वहां से भी आपको मैटर मिल सकता है, तो देख लीजिए वहां पर भी जो अप्रोच कर पाए। बाकी तो हमारा मैं तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, एडिशनल सोर्स हो जाएगा आपके लिए। चलिए ठीक है, तो so the external ear is comprised of 3 cartilages: conchal cartilage, scutiform cartilage and annular cartilage. Conchal cartilage is the biggest one and it is forming the shape of the ear. मतलब ये पूरा एरिया किसने कवर करके रखा है, conchal cartilage ने कवर करके रखा हुआ है। And the affection of external ear is also known as canker, CANKER, canker भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो मतलब वो that name is also derived from the conchal cartilage, ठीक है। This is the conchal cartilage. Then after scutiform cartilage, that is small quadrilateral in shape attached to anterior aspect of base of conchal cartilage. Conchal cartilage का base कौन सा होगा, this will be the base of the conchal cartilage, और इसका जो anterior aspect होगा means this one here will be the presence of what, anterior aspect of it there is presence of scutiform cartilage. Annular cartilage जैसे इसका नाम है annular मतलब ring, it is form of small incomplete ring, it is attached to external auditory meatus. मतलब जो external auditory meatus क्या है, it is a passage, so this cartilage is present over that passage, ठीक है। चलिए, so these are the 3 cartilages which are forming the
ear pinna. Now second component of external auditory meatus. So external auditory meatus, it is slightly curved ventrally and cranially. मतलब जैसे हम कान में उंगली डालते हैं ना, तो कान में उंगली डालते हैं तो जहां हमारी उंगली अप्रोच कर पाती है, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस. आप कहां पर उंगली डाल रहे हो? आप एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस में उंगली डाल रहे हो. आप वैक्स कहां से रिमूव कर रहे हो? एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस से रिमूव कर रहे हैं. बट दिस जो मियाटस है, इसका जो शेप है, दैट इज डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज. डॉग में अलग है, यहाँ ऑक्स में अलग है, ठीक है ना. ह्यूमन में भी कर्वड होगी, लेकिन ये कर्विंग के पैटर्न में थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा, ठीक है ना, कि कितनी कर्व्ड है. हियर इन केस ऑफ ऑक्स इट इज स्लाइटली कर्व्ड वेंट्रली एंड क्रेनियली, नीचे की तरफ और आगे की तरफ थोड़ी सी कर्व होगी, स्ट्रेट नहीं होगा, राइट. देन लेटरली 1/3 इज कार्टिलेज एंड मीडियल 2/3 इज बोनी. ठीक है, तो ये जो इसका जो कंपोनेंट है इसका एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, सो medial जो 2/3 पार्ट है that is bony and lateral 1/3 part is cartilaginous. ठीक है. Then the lining epithelium of meatus accommodates some sebaceous and sweat gland which secretes cerumen or earwax. तो actually lining epithelium यहाँ की external ear है ना, तो external ear की lining sensory lining तो होगी नहीं यहाँ पर, है ना. lining कौन सी होगी? यही होगी, stratified squamous epithelium की ही होगी lining. And there are presence of sebaceous and sweat gland also which secrete the wax. ठीक है. Infection of external ear is generally very painful because skin is firmly adherent to underlying bone and cartilage. बिल्कुल सही. आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, क्योंकि कान की पियर्सिंग क्यों सक्सेसफुल होती है, क्योंकि कार्टिलेज में जो क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज में क्या है, हीलिंग थोड़ा सा डिले है. तो यहाँ पर इसमें पियर्सिंग जो है वो बहुत इजी होता है. ठीक है, एक तो पियर्सिंग इजी भी होता है एंड कार्टिलेज, इट इज अ कार्टिलेज सो दैट द पियर्सिंग रिटेन फॉर लॉन्ग टाइम. सो बट इन्फेक्शन ऑफ एक्सटर्नल ईयर इज जनरली वेरी पेनफुल. मतलब अगर स्किन में इन्फेक्शन हो गया तो इट इज वेरी इजीली रीचिंग टू द कार्टिलेज, और दैट इज व्हाई इट इज वेरी पेनफुल. ठीक. सो और डिसीजेस ऑफ एक्सटर्नल ईयर आप पढ़ेंगे, सर्जरी में पढ़ेंगे. फिर इसके बहुत सारे डिसीजेस हैं. डॉग में तो बहुत कॉमन है और वो काफी चीजें आप पढ़ेंगे बाद में. डॉग में सर्जरी भी बहुत कॉमन है एक्सटर्नल ईयर का. हेमेटोमा थोड़ा बहुत सुना हो, जिससे घर में पेट होगा तो बड़ा कॉमन है कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल ईयर है वहां पर एक बड़ी सी स्वेलिंग हो जाएगी, बिल्कुल बलून, मतलब एकदम फूल जाएगा ईयर, और उसके अंदर क्या अकोमोडेट हो जाता है, sanguineous fluid. sanguineous fluid मतलब fluid having red tinge, having some RBCs also, मतलब वहां पर, इसलिए उसको hematoma बोलते हैं. ठीक है ना. तो ये डॉग में बहुत कॉमन है सर्जरी एक्सटर्नल ईयर का. एक तो ये भी बहुत कॉमन है हेमेटोमा. फिर इसका जो ईयर कैनाल है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है डॉग में. इसका भी लेटर ऑन सर्जरी ही करना पड़ता है कई केसेस में. मतलब ट्रीटमेंट, मेडिसिनल ट्रीटमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव, सो मेनी केसेस सर्जरी इज डन. ठीक है, तो ये तो हुआ एक्सटर्नल ईयर के बारे में. एक्सटर्नल ईयर मैंने फर्स्ट फोटोग्राफ में आपको दिखाया था. दिस इज up to here is the external ear. You see here auditory canal is curved over here. This is the base of the base, हम बोलते हैं ना पिन्ना का क्या, base of ear pinna. ठीक है ना, this is the base of ear pinna. Here is the tympanic membrane which is separating the external ear from the middle ear. This one is the middle ear, right? And this portion is of internal ear. ये सभी को पता है, बस एक डिवीजन ही हो रहा है kind of. This is tympanic membrane. Yeah, these are the 3 ear ossicle. This one is malleus, this one is incus, here is the stapes. ठीक है, and here this is the internal ear having semicircular canals and cochlea. ठीक है, so one by one we will discuss. तो ear pinna सभी को समझ में आया? external ear. Yes, ma'am. आगे चले, है ना. Now the tympanic membrane और ear drum.
ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम, इट्स डायमीटर वेरीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, ठीक है ना, वो तो ऑब्वियस है। स्पीसीज क्या, आप एक इंडिविजुअल स्पीसीज है, मतलब केवल डॉग में भी आप देखोगे तो ची हुआ जो ब्रीड है वो बहुत स्मॉलेस्ट ब्रीड है, और ग्रेट डेन बड़ा है, लेब्राडोर बड़ी ब्रीड्स हैं विद इन द डॉग, तो उनमें भी साइज का डिफरेंस जाएगा, ठीक है ना। द डायमीटर वेरीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज इवन बिटवीन द ब्रीड्स आल्सो, ठीक है। इन केस ऑफ ऑक्स द डायमीटर इज 8 to 10 mm, ठीक है ना, डायमीटर इज 8 to 10 mm। माइंडेड इट इज नॉट द थिकनेस, इट इज द डायमीटर, थिकनेस नहीं है ये क्या है, ये डायमीटर है, 8 to 10 mm, right? Then it contains externally cuticular, middle fibrous and internal mucosal layers. Means tympanic membrane is comprised triple layer structure having 3 layers, ठीक है ना। and 3 layers आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ये नीट में क्वेश्चन भी बहुत आता है, क्योंकि this is the tympanic membrane which is derived from all the 3 germ layers. All the 3 germ layers contribute in formation of tympanic membrane. तो जो बाहर की क्यूटिकुलर लेयर है वो किससे डिराइव्ड है, एक्टोडर्म से। मिडिल का जो फाइब्रस है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो हम बोलते हैं वो क्या है, मेसेंकाइम है, मेसोडर्मल है। सो मिडिल फाइब्रस इज मेसोडर्मल and internal mucosal layer is endodermal, right? So the 3 layers are originated from 3 different germ layers, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और यहाँ के लिए भी कॉमन क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर जगह पैटर्न होते हैं। Then margin is thick and attached to tympanic sulcus at end of meatus, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो meatus है, ये अगर हम एक्सटर्नल ईयर देखें तो दिस इज द एंड ऑफ द meatus, दिस इज द एंड ऑफ meatus। एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज लाइक जैसे ढोलक होती है, तो ढोलक में जो बजाते हैं तो जो लगी रहती है, दैट इज द मतलब छाल जिसको हम बोलते हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज लाइक आल्सो लाइक दैट। सो इट इज पेरिफेरली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कनेक्ट अटैच्ड विद द सल्कस, ठीक है ना। देयर इज टिम्पैनिक सल्कस, तो पेरिफेरली the tympanic membrane is attached with that tympanic sulcus, right? So tympanic sulcus and at end of meatus. Lateral surface is concave and medial is convex. तो lateral और medial इसमें कौन सी हो जाएगी, lateral मतलब बोला है towards external ear and medial is towards middle ear. तो lateral surface is concave and medial is convex. And the handle of malleus is attached to medial surface. ये सभी को पता है। Ear ossicle, there are 3 ear ossicles. First ear ossicle is malleus, and the handle of malleus is attached to the medial surface, right? So this is all about the tympanic membrane. Now next to this is the middle ear. Middle ear आप लोग बीच बीच में ज्वाइन करते हो, मैं पीपीटी पढ़ा रही हूँ इसलिए तो एडमिट नहीं कर पा रही हूँ। अंजलि, हाँ अंजलि कहाँ हो, अंजलि और किसको एडमिट होना है, जल्दी आ जाओ। सारों का आज लेट क्यों हो गए आप? मैम हमारे यहाँ कल से बरसात आ रही, लाइट नहीं आ रही, सब अब जाकर लाइट है, अब जाकर चालू। हाँ मौसम तो खराब हो रहा है, नो डाउट। खैर मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर, खैर समस्याओं से घिरी हुई है जिंदगी, बस इसी में आपको बेस्ट करना है इन्हीं समस्याओं के बीच। हाँ बोलो, क्या और किसी को कोई प्रॉब्लम है? कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करें? यस मैम। यस मैम। ठीक है। नाउ द मिडिल ईयर, ठीक है, हमने एक्सटर्नल ईयर पढ़ा है, ठीक है ना। एक्सटर्नल ईयर में हम कंप्लीट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर कमिंग टू द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर इज रेगुलरली बाइकॉन्केव स्मॉल स्पेस, ठीक है, बाइकॉन्केव स्मॉल स्पेस
within petrous temporal bone. ठीक है, this is the space which is present in petrous temporal bone placed between eardrum and internal ear. ठीक है, मतलब इधर से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाउंड्री बनाएगा और उधर से इंटरनल ईयर बाउंड्री बनाएगी इसकी, ठीक है ना। मिडिल ईयर का पिक्यूलरिटी क्या है, हम दो ही चीजें पढ़ते हैं, एक तो ईयर ऑस्किल पढ़ते हैं एंड ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। कभी भी बात चलती है तो हम इन दो चीजों के बारे में ही चर्चा होती है, मिडिल ईयर की जब भी चर्चा होती है, ठीक है। तो इट कंटेन ईयर ऑस्किल पार्ट ऑफ कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई क्या है बताओ भाई, कॉर्डा टिम्पेनाई क्या है? क्रेनियल नर्व है। यस मैम। हाँ, तो अभी कॉक्लियोवेस्टिबुलर नर्व भी आने वाली है, ठीक है ना। तो हाँ निधि, मैं हाँ, ईयर ऑसिकल की बात चल रही थी, ठीक है ना। ईयर ऑसिकल एंड पार्ट ऑफ कॉर्डा टिम्पेनाई। कॉर्डा टिम्पेनाई मसल्स भी होंगी, ठीक है ना, मसल्स एंड एयर। मसल्स आपको सभी को आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता होगा, टेंसर टिम्पेनाई इज वन ऑफ द मसल एंड, ठीक है ना। सो outer wall of this middle ear is formed by the eardrum, ठीक है, and the inner wall is formed by lateral wall of internal ear which present oval and round window. अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझेंगे, थोड़ा ये थोड़ा पढ़ने के बाद मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगी। The anterior wall presents the opening of a canal which lodges the tensor tympani muscle and another opening of eustachian tube. मतलब इसमें क्या है, देखो बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है ये एक्चुअली कि ये इरेगुलरली बाइकॉन्केव एरिया है मिडिल ईयर, ठीक है ना। इसमें आउटर वॉल ईयर ड्रम एंड इनर इट इज कन्फाइंड विद द इंटरनल ईयर, ठीक है। आउटर होगा, लेटरल होगा, मीडियल होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें बोला ना, आउटर वॉल इज फॉर्म बाय ईयर ड्रम एंड इनर इज फॉर्म्ड बाय इंटरनल ईयर। तो आउटर और इनर हो गया, और दूसरा होगा एंटीरियर एंड posterior. तो anterior wall presents the opening of a canal which lodges the tensor tympani muscle and opening of eustachian tube, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले डायग्राम से समझेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। स्टार्टिंग का ही डायग्राम लेना पड़ेगा, ये वाला, इसी डायग्राम को देखिए आप, इसी में ही डायग्राम में देखें कि हियर इज 3 ईयर ऑसिकल, ठीक है। ये आउटर बाय द ईयर ड्रम, internally confined by this internal ear. This one is called round window, ठीक है ना, round window, and not round window, it is called oval window. Here is the oval window and another is the round window, ठीक है। And here is the communication with the eustachian tube. Eustachian tube सभी को पता है, the middle ear is connected with the nasopharynx by a tube that is called eustachian tube which maintain the atmospheric pressure in the middle ear, ठीक है ना। And this is how the infection can also be spread from the nasopharynx to the ear, ठीक है ना। अगर कोई इन्फेक्शन नेजोफेरिंग्स में है, मतलब आपको सर्दी होती है तो जल्दी कान में भी दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड विद द नेजोफेरिंग्स। सो दिस इज द eustachian tube, it is connecting here, ठीक है। So now one by one we will discuss all the ear ossicles. एक और डायग्राम अच्छा था, मैं देखती हूँ डायग्राम जिसमें दोनों विंडो दिखेंगी, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। नहीं इसमें डायग्राम है नहीं, चलो कोई बात नहीं।
So ear ossicles, they are 3 in number, arranged in a chain-like manner to connect eardrum to oval window of internal ear. अच्छा मुझे ये बताओ, ये इन सब का यूटिलिटी क्या है? कोई भी बता सकता है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दीज ईयर ऑसिकल्स? एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड. एम्प्लीफिकेशन. हाँ, और क्या बोल रहे हो? हाँ, एक बच्चे ने बोला है. हाँ, ट्रांसमिशन साउंड ट्रांसमिट करना क्लियरली, साउंड का ट्रांसमिशन करना इंटरनल ईयर तक. हाँ, इंटरनल ईयर तक ट्रांसमिशन करना है, वो भी सही बात है. तो दोनों काम है, ट्रांसमिशन एज वेल एज एम्प्लीफिकेशन, दोनों ही काम है. ठीक है ना? तो ऑल्दो खैर आप लोग तो बड़े होशियार बच्चे हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, है ना, कि भाई जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स को आपको वहां तक पहुंचाना है. ठीक है ना? हेयर सेल्स तक पहुंचाना है, इंटरनल ईयर में हेयर सेल्स तक पहुंचाना है. तो फर्स्ट इट इज collected by the ear pinna, then it is falling to the tympanic membrane, from the vibration of the tympanic membrane, from the malleus, then incus, then stapes, and we call the stapes is the smallest bone, smallest ear ossicle. Stapes is the smallest ear ossicle ना, सभी को पता है. हाँ, तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि when means large pressure or huge pressure applied in a small area, तो it create नहीं मतलब हाँ, साउंड वेव जो एम्पलीफाई हो रही है कि अगर जितना कम एरिया में एयर को अगर फिल्ड करोगे या किसी चीज को, तो प्रेशर उतना ज्यादा क्रिएट होगा. तो स्टेपिस बोन छोटी है, तो इट में क्रिएट मींस ग्रेट प्रेशर ओवर द इंटरनल ईयर. ठीक है ना? सो दैट that is how it amplifying the sound waves. मतलब जितना छोटा एरिया होगा, वहां से अगर एयर या साउंड वेव्स पास होंगी, जितने कम पैसेज से या छोटे पैसेज से कोई भी चीज गुजरेगी, तो प्रेशर उतना ज्यादा क्रिएट होगा. तो दिस इज द एक्चुअली कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस. ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं आप लोग को, वहां पर भी नीट में भी हम लोगों ने भी पढ़ा था उस समय. मिस हास, अरे क्या हुआ, ऐसे करके पढ़ा था. MIS को मिस बोला था, MIS मिस, और हास मींस मेलस इज हैमर शेप, इंकस इज एनुअल शेप, स्टेपस इज स्टीरअप शेप. तो आई थिंक अब ये याद करने की जरूरत नहीं है, अब सभी को याद हो चुका है. तो शेप इसलिए याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है. ठीक है ना? और यहाँ पर ज्वाइंट किस टाइप का बनेगा वो जरूर याद रखना है, क्योंकि अब हमको ये भी याद रखना है कि which bones are forming which type of joint, because this may be asked in arthology also. So malleus is hammer shaped bone makes ball and socket joint with incus. ये आपको अंडरलाइन करना है, मतलब लिखना है, बताना है कि the ball and socket joint जब हम पढ़ रहे थे तो हमने दो ही ball and socket की चर्चा की थी उस समय, याद करो, है ना? दो ही बॉल एंड सॉकेट की चर्चा की थी, एक तो हिप ज्वाइंट की चर्चा की थी और एक शोल्डर ज्वाइंट की. अब देखो आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर मिल गया है बॉल एंड सॉकेट का, दैट इज ज्वाइंट बिटवीन मेलस एंड इंकस. ठीक है ना? ज्वाइंट बिटवीन मेलस एंड इंकस इज बॉल एंड सॉकेट, एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट. देन इंकस इज एनुअल शेप एंड फॉर्म्स हिंज ज्वाइंट. It form hinge joint with stapes. ठीक है? And stapes is stirrup shape, and stapes connect the, this is the bone, smallest bone which connect the middle ear to the internal ear. ठीक है? The muscles of middle ear are tensor tympani and stapedius. ठीक है? तो tensor tympani, its origin is from petrous temporal bone and insertion on head of malleus. ठीक है? ठीक? So and the stapedius muscle origin from posterior wall of middle ear and insertion to the neck of stapes. So these are the two muscles which make this middle ear in its position and also maintain the pressure, because middle ear is connected with the किससे connected है, eustachian tube के साथ connected है. और यहाँ पर जो ये bones का action है, ठीक है ना, the action of bones are also governed by these muscles. ठीक है ना?
हम क्यों ह्यूमरस और रेडियस और अल्लाह हम कैसे इन बोन्स को मूव कर पा रहे हैं, that is because of muscles. So here are also presence of bones, and for the movement of these bones require muscles. तो आपने पूरे ईयर में अभी मसल की चर्चा कहीं नहीं की, ठीक है ना, यहाँ पर भी कहाँ कोई मसल की चर्चा हुई है. So here actually there are in the middle ear there are two muscles, that is tensor tympani and stapedius muscle, ठीक है. और ईयर का मसल्स अपन और पढ़ेंगे, बाद में भी पढ़ेंगे जब मसल्स पढ़ाई जाएंगी, ठीक है. मसल्स आप देखना घोष में, तो घोष में भी मसल्स, यहाँ पर आपको मसल्स और भी मिलेंगी. दैट I don't discuss over here because I am discussing here it like a sense organ. तो मसल का पढ़ोगे आप लोग बाद में, ठीक है. चलिए, तो so stapedius it is the smallest muscle, right? सभी को पता होगा ये. It is the smallest muscle. Stapes is the smallest bone and stapedius is the smallest muscle. Dr. Nidhi Gupta. हाँ मैडम जी. Sharma sir recently अच्छा हाँ, जो एडमिट he is joining है ना, अभी कर लो क्लास, बट वो सब 1 आध मिनट में ज्वाइन करने वाले हैं ना. एक हो गए हैं सर, आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है सर ने. ज्वाइन कर लिया. हाँ अभी रिसेंटली सर को ज्वाइन. सर गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Good morning students. Our respected dean Dr. R.K. Sharma